بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم موازنہ کریں گے ریاست بہاولپور کا دو ہمسایہ ریاستوں جیسلمیر اور بیکانیر کے ساتھ۔ آج وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں گی۔ ناظرین، ریاست بہاولپور کے مشرق اور جنوب میں دو راجپوت ریاستیں تھیں، بیکانیر اور جیسلمیر۔ ریاست بہاولپور سے قبل یہ دونوں ریاستیں صادق آباد، رحیم یار خان، خانپور، احمد پور شرقیہ کے علاقہ ڈراور، یزمان، خیرپور ٹامے والی، فورٹ عباس، چشتیاں، ہارون آباد، بہاول نگر اور منچن آباد کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ریاست بہاولپور میں جب وجود میں آئی تو آہستہ آہستہ پھیلتی گئی اور اس کی سرحدیں واضح ہو گئیں۔ بہاول نگر، ڈونگا بونگا، فقیر والی، سردار گڑھ، فورٹ عباس، میر گڑھ، مروٹ، جام گڑھ، موج گڑھ اور یزمان کے بیشتر علاقے ریاست بیکانیر کے سامنے تھے، جبکہ رکن پور، بجنوٹ، خان گڑھ، خیر گڑھ، ڈراور، اسلام گڑھ، رحیم یار خان، خانپور اور صادق آباد کے علاقے ریاست جیسلمیر کو لگتے تھے۔ ناظرین، امیران بہاولپور نسلی اعتبار سے عظیم تر عسکری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ 1731 میں فرید خان لکھویرا کے خلاف لڑائی میں ٹھٹھ فرید فتح کیا۔ 1733 میں راجہ جیسلمیر سے جنگ میں قلعہ ڈراور فتح کیا۔ 1749 میں راجہ جیسلمیر سے قلعہ مروٹ کو فتح کیا۔ 1759 میں راجہ جیسلمیر سے قلعہ بھیم گڑھ، جسے اب اسلام گڑھ کہا جاتا ہے، فتح کیا۔ 1766 میں راجہ بیکانیر سے جنگ میں قلعہ انوپ گڑھ اور قلعہ ولڑ فتح کیا۔ 1806 میں لال سوارا کے مقام پر راجہ بیکانیر کو شکست دی۔ 1808 میں راجہ بیکانیر سے قلعہ پھولرا اور قلعہ میر گڑھ فتح کیا۔ الغرض، جب بھی جیسلمیر اور بیکانیر کے ریاستوں سے جنگ ہوئی، مجموعی طور پر ریاست بہاولپور کی فوج کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے نتیجے میں جنوب مشرق کی جانب سے ریاست بہاولپور کی سرحدیں وسعت اختیار کر گئیں اور اس کی حدود میں ڈراور، موج گڑھ، بھیم گڑھ، موجودہ اسلام گڑھ جسے کہتے ہیں، انوپ گڑھ، پھولرا اور میر گڑھ جیسے دفاعی اہمیت کے قلعے اور ان سے ملحقہ علاقہ جات ریاست بہاولپور میں شامل ہو گئے۔ معاشی اعتبار سے بھی دونوں ریاستوں سے بہتر حالت میں تھی ریاست بہاولپور۔ ریاست بہاولپور میں قلعے بنے، شاہی محل بنے، امیران کی رہائش گاہیں بنی، مساجد بنی، تعلیمی اداروں کی پرشکوہ عمارتیں بنی۔ یہی کام ریاست بیکانیر اور جیسلمیر میں بھی ہوئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سرحد کے پار تو تاریخی ورثہ نہ صرف اپنی حالت میں موجود ہے بلکہ ان کا رنگ مزید نکھرتا جا رہا ہے اور ہماری طرف ہر چیز مٹی کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے، حالانکہ دونوں طرف ایک ہی طرح کا ماحول ہے۔ وہی ریت کے ٹیلے، وہی پانی کے ٹوبے، وہی اونٹوں کے ذریعے آمد و رفت، اسی ایک ہی دور کے قلعے، ایک ہی طرح کی حویلیاں اور شاہی محلات۔ ناظرین، صرف ایک جیسلمیر کے قلعہ کو ہی لے لیں، آج وہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے اور سالانہ لاکھوں سیاح بیرون ملک سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ نہ صرف جیسلمیر کا قلعہ بلکہ راجستھان کے 5 مزید قلعے، جس میں چتور گڑھ کا قلعہ، کمبل فورٹ کا قلعہ، راتھمبور کا قلعہ، ایمبر فورٹ کا قلعہ اور گاگرون کا قلعہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہیں۔ قلعہ ڈراور اور قلعہ جیسلمیر کے درمیان زمینی اعتبار سے صرف 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن قومی اور تاریخی ورثہ کی حفاظت کے لحاظ سے لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جیسلمیر کا قلعہ 1156 میں راجہ جیسل نے بنایا تھا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک قلعہ میں شہر کی چوتھائی آبادی آباد ہے۔ اس لیے اس قلعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہر کے اندر قلعہ ہے اور قلعہ کے اندر شہر ہے۔ ناظرین، جہاں پر پہلے ریگستان ہوا کرتا تھا، پانی کی بہت کمی ہوا کرتی تھی۔ گھی اور دودھ تو آسانی سے مل جاتا تھا لیکن پانی نہیں ملتا تھا۔ اس قلعہ کو بناتے وقت
पत्थरों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा गया था कि आज सदियां गुजरने के बावजूद ना सिर्फ मौजूद है बल्कि आबाद भी है। 1.5 किलोमीटर पर फैला हुआ है। किला जैसलमेर में राजा और रानी का महल है, महाराजा का महल है, मोती महल है, रंग महल भी इसके अंदर है। पूरी मार्केट बनी हुई है, पंसारी बाजार, भाटिया बाजार, सदर बाजार, सराफा बाजार। नाज़रीन, 30 से ज़्यादा होटल और 45 रेस्टोरेंट इसके अंदर मौजूद है और उनमें रूफ टॉप रेस्टोरेंट काफ़ी मकबूल हैं। जेल भी किला के अंदर है, कई मंदिर हैं। अजायब घर में तमाम पुरानी चीज़ें और पुराना असला नुमाइश के लिए रखा गया है। 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। खूबसूरत हवेलियाँ, पटून की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली भी किला के अंदर मौजूद है। इन हवेलियों और साथ ही सहराई इलाकों में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट की जाती हैं। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग भी जैसलमेर के बड़े बाग में की गई। सियाहों की सहूलियत के लिए जहां बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, वहां मैरियट होटल भी अपनी खिदमत पेश कर रहा है। नादरीन, जैसलमेर के मगरब में वाक़े रेत के बड़े बड़े टीलों को बेकार नहीं छोड़ा गया, बल्कि वहां पर कैंप लगा दिए। सयाह जीपों और ऊँटों पर डेजर्ट सफारी का मजा उठाते हैं। राजस्थानी लोक मूसीकी और रक्स भी पेश किया जाता है। बारिश के पानी को जमा करने के लिए जो टोबे बनाए थे, इन्हें झीलों का रंग देकर सियाती मकाम बना दिया। डेजर्ट कल्चरल सेंटर और म्यूजियम में टेक्सटाइल्स, पुराने बर्तन, हथियार और आलात मूसीकी भी सियाहों की दिलचस्पी का मरकज होते हैं। दुसेरा चौक किला के अंदर एक खुला मैदान है जहां मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं और किला के 4 दरवाजे हैं। किला के साथ ताजिया टावर एक खूबसूरत 5 मंजिला इमारत है। नादरीन, किला जैसलमेर तो बड़े किलों में शुमार होता है। इसके साथ साथ छोटे छोटे किले भी होते थे। इनमें से खाबा फोर्ट, लोधरवा फोर्ट, पकारन फोर्ट है। इनकी ज़रा आप हालत देखें। आगे चलकर हम आपको किला ड्रावर के अलावा अपने छोटे छोटे किले दीनगर, मौजगर, मरोट, खानगर, फोर्ट अब्बास, जामगर, इस्लामगर, बजनोट, मीरगर और खैरगर के किलों की हालत और हालात भी बताएंगे। नादरीन, अब बात करते हैं बीकानेर रियासत की। बीकानेर भी किला ड्रावर से 200 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ का किला जूनागढ़ 1593 में राजा राय सिंह ने बनाया था। इस किला में भी मंदिर और महल्लात है। चारों तरफ 1 किलोमीटर की दीवारें हैं। इस किला के इर्द गिर्द भी रेगिस्तान है। किरण महल, अनोप महल, चांदरा महल और फूल महल इस किला के अंदर पुरकशिश सियाती महल्लात हैं। गंजनीर महल देखें, लालगढ़ महल देखें, रामपुरिया हवेली देखें, हत्ता के रॉयल सैनोटॉफ्स देखें। कितने खूबसूरती से बनाए गए हैं और कितनी तवज्जो से इनकी खूबसूरती को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। रॉयल सैनोटॉफ्स वो शाही मकबरे हैं जो फर्जी तौर पर बनाए गए हैं। इनमें कोई मैयत दफन नहीं है, सिर्फ यादगार के तौर पर बने हुए हैं। कैमल सफारी और डेजर्ट कैंपिंग की वजह से सयाह लुत्फानंदोज होते हैं। सिर्फ ऊँटों के ऊपर सवारी नहीं कराई जाती, बल्कि ऊँटों के साथ बड़े बड़े रेरे लगाकर सियाहों को बिठाते हैं और रेत के टीले, पानी के टोबे, देहातों के कच्चे मकान दिखाकर खूब कमाई करते हैं। नादरीन, दोनों रियासतों के सहरा में विंड टर्बाइन्स लगाकर बिजली हासिल की जाती है। जैसलमेर विंड पार्क इंडिया का दूसरा और दुनिया का चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे 1064 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। नादरीन, इन 2 रियासतों के तज़किरा के बाद हम आते हैं अपनी रियासत भावलपुर की तरफ। रियासत भावलपुर भी सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है। वही रेत के टीले, वही पानी के टोबे, वही ऊँटों के जरिए आमदोरफ्त, इसी एक ही दौर के दिफाई किले, हवेलियाँ और शाही महल्लात। लेकिन क्या वजह हुई या हो रही है कि हमारे ना तो दिफाई किलों को महफूज किया जा सका और ना ही शाही महल्लात की हिफाजत की जा सकी। चंद एक महल्लात जो हमारे पाक आर्मी के शेर जवानों की निगरानी में है, वो न सिर्फ असल हालत में मौजूद है बल्कि उनका रंग मजीद निखरता जा रहा है। रियासत भावलपुर में किलों की तादाद 29 थी, जिनमें से मरकजी हैसियत किला ड्रावर को थी, जो कि 130 किलोमीटर दूर है भावलपुर से और अहमदपुर शर्किया की तहसील में वाक़ है।
40 से ज़्यादा बड़े बड़े बुर्जों वाला ये किला आपको मीलों दूर से दिखाई देता है। इसका कुल अहाता 1.5 किलोमीटर है और ऊंचाई 90 फुट है। इसे 9वीं सदी में एक हिंदू हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने रावल देवराज को भट्टी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया था। पहले इसका नाम डेरा रावल था, बाद में डेरा रावर पड़ गया और वक्त के साथ साथ अब इसे डेरावर के नाम से पुकारा जाता है। 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने इसे फतह किया। नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस 1904 में इसी किला में पैदा हुए। इसमें शाही महल्लात थे, फौजी दस्तों की रिहाइश गाहें थीं, मसाजिद, अदालतें और जेलें थीं। रियासती उमूर के लिए मुख्तलिफ दफातर थे, लेकिन नामुनासिब देखभाल और गफलत की वजह से सब मिट्टी का ढेर हो गया है या हो रहे हैं। कोई इमारत, कोई कमरा, कोई बरामदा, कोई हवेली, कोई महल सलामत नहीं। बैरूनी दीवारें भी खस्ता हाल है, दरारें पड़ चुकी हैं और किसी भी वक्त कोई दीवार या बुर्ज जमीन बोस हो सकता है। कल पूरा दिन इसी किला में कुर्ते कुर्ते गुजारा। मुख्तलिफ तस्वीर भी नहीं जो आप भी देख रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये हालत देखें, ये देखें ज़रा, ये देखें क्या बचा है सलामत। ये देखें, ये देखें, ये देखें, क्या वजह है? क्यों हम अपने सकाफती विरसा को बर्बाद कर रहे हैं? किसकी नजर बद हमें खा गई? इतना बड़ा असासा ज़ाय हो रहा है। अगर इसे बर वक्त संभाल लिया जाता तो न सिर्फ हमारे इलाका के लिए बैस फख्र होता, बल्कि बैरूनी सियाहों की वजह से कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी तक हमारा नाम नहीं आया। ऐसी हालत देखकर वो क्यों लिस्ट में डालेंगे? अब मजीद चंद तस्वीर में देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, हालत देखें, कोई चीज़ सलामत है? ये देखें, ये देखें। इसके बाद बाकी किलों और शाही महल्लात की हालत भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें इस्लामगढ़ का किला। यह किला पहले भंवर किले के नाम से जाना जाता था। यह किला चुलिस्तान में तहसील खानपुर में वाक़ है। यह किला इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़ है। इसकी दूसरी तरफ भारतीय शहर किशनगढ़ है। यह किला ड्रावर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है। यह देखें किला मीरगढ़। यह किला फोर्टाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। इस किला की ऊंची दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं। यह किला भी बहुत ही खस्ता हाल है। ये देखें, यह भी तवज्जो का तलबगार है। इसकी हिफाजत भी ना की गई तो जल्द रूह ज़मीन से अपना नक्श मिटा देगा। अब है ये देखें किला जामगढ़। किला जामगढ़ किला मीरगढ़ से 9 किलोमीटर दूर है। यह किला खूबसूरत ईंटों से बना हुआ है। इसकी हालत कुछ बेहतर है। अब आपको मौजगढ़ किला दिखाते हैं। यह किला भी अपनी तबाही की आखिरी मंजिलों पर है और हुकूमती इदारों की तवज्जो का तलबगार है। यह किला चुलिस्तान में फोर्टाबास और यजमान के दरमियान में है। यह किला भी इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इस किला को 1743 में मारूफ खां कुरानी ने तामीर कराया था। यह देखें किला दीनगढ़। यह किला यजमान से 30 किलोमीटर दूर है। इसकी हालत भी बहुत ख़राब है। सिर्फ एक तरफ की दीवार बची हुई है, बाकी दीवारें खंडर बन चुकी हैं। इसके चारों तरफ सहरा है। इस किला के इर्द गिर्द तकरीबन 8 कुएं थे। कुछ तो ख़त्म हो चुके हैं। 4 कुएं अभी भी मौजूद हैं। कुएं बहुत गहरे हैं। ये कुआं देखें, ये देखें, ये देखें ज़रा। इसके इस्तेमाल की जगह अभी तक बची हुई है। ये कुआं देखें। इसके इर्द गिर्द खुदाई की गई है। PCR WR वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। यहाँ पर PCR WR वालों का रिसर्च सेंटर और तजर्बाती टोबे भी हैं। इसका तफसीली तज़किरा किसी और पूरी एपिसोड में करेंगे। अब ये देखें खानगढ़ किला की हालत ज़ार। यह किला डिरावर से 70 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी दीवारें भी तकरीबन गिर चुकी हैं। ये देखें खैरगढ़ का किला। यह किला डिरावर से 64 किलोमीटर दूर है। इसकी हालत भी बाकी किलों से मुख्तलिफ नहीं। चारों तरफ से बनाए गए 8 बुर्ज भी खस्ता हाल है। ये देखें नवाकोट का किला। नवाकोट का किला कुछ अच्छी हालत में है, लेकिन काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है।
ये किला ड्रावर से 45 किलोमीटर के फासले पर है। ये देखें किला बजनोट। ये किला वंजरोट किला भी कहलाता है और इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इसे राजा वंजा ने 757 में तामीर कराया था। ये किला अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मशरक़ की तरफ किला जूनागढ़ और जनूब की तरफ किला जैसलमेर हमारा मुंह चिरा रहे हैं। नादरीन, रेगिस्तानी इलाकों में चूंकि पानी की शदीद किल्लत होती है, इसलिए बड़े बड़े टोबे बनाए जाते हैं ताकि बारिश के दिनों में यहाँ जो पानी इकट्ठा होता है इसे कुछ अर्सा तक इस्तेमाल में लाया जा सके। रियासत जैसलमेर में रावल जैसल ने एक बहुत बड़ा टोबा इस मकसद के लिए बनाया, जो बाद में झील की शक्ल इख्तियार कर गया। इसे गाड़ी सर लेक का नाम दिया गया। इस कदर खूबसूरत बनाया गया, अब ये एक बहुत बड़ा सियाती मकाम है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये देखें, हम दिल दे चुके सनम फिल्म के कुछ सीन यहां पर भी फिल्माए गए। किला ड्रावर के साथ भी इस मकसद के लिए एक टोबा बनाया गया था। पहले तो इसमें कुछ पानी होता था, अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। डेरा नवाब साहब में सादिकगढ़ महल देखें। ये कभी रियासत का दारुल हुकूमत होता था। पूरी दुनिया से मेहमान यहाँ आते थे। अब ये अपनी बर्बादी और खस्ता हाली की दास्तान सुना रहा है। इस महल के नीचे बैंक होता था, जिसके आसार अभी भी मौजूद हैं। अगर किसी ने बर्बादी देखनी हो तो सादिकगढ़ पैलेस देखें, गाड़ी की हालत देखें। ये देखें, दौलत खाना महल देखें। ये महल भावलपुर शहर में है, इसकी हालत देखें। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये सादिक मंजर की हालत देखें। ये देखें। अब ये राहत मंजिल देखें। ये देखें, देखें क्या बचा हुआ है। ये देखें, ये देखें। नादरीन, सरहद पार लोग सयाहत की शक्ल में अपनी रेत बेच रहे हैं, ईंटें बेच रहे हैं, अपने टोबे और टीले बेच रहे हैं और हम मट्टी का ढेर कर रहे हैं। आखिर में इस दुआ के साथ रुखसत कि काश कोई इस कदीमी विरसा का सोचे और अगली नस्लों के लिए महफूज करे। नादरीन, अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।